নমস্কাৰ সো আজি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ আমি আৰু এটা টপিক ডিসকাশন কৰিব ওলাইছো কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ চেপ্টাৰৰ যেটো ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ বা নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ বৈশিষ্ট্যক লৈ পেলাই ক্লিয়াৰ যোৱা ভিডিওটোত আমি হোৱাই ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভস কনভেক্স টু দা অৰিজিন means নিৰপেক্ষ ৰেখা এডাল কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি কিয় উত্তল হয় হেতুলৈ আলোচনা কৰিছিল ক্লিয়াৰ আজি আমি স্পেশালি ডিসকাশন দুটা টপিকৰ ওপৰত কৰিম ক্লিয়াৰ হে দুটা টপিক মই লিখি থৈছো সোৱা shape of IC clear means indifference curve or jitu akriti ami jano shape of IC boli kote it is always convex to the origin clear but special case moi duta aji discussion korim tar loge loge iate moi aru eta question likhi thoisu related to property of indifference curve why two IC cannot cuts tar mane dudal niropekho rekhai kyo etai antuk kotakoti nokore clear ba sporkho nokore clear tite hole bola ami arambho koru More first question to is a shape of IC means in general ami jano IC shape always kendor proti uttol hoy clear means always IC convex to the origin but in case of perfect substitutes or perfect complements goods of IC shape keneka hoy jitu moi last video tot okoman discussion korisilu property kintu moi aji bhal details ot ko bisaisu in case of perfect substitutes in case of perfect complements we already know perfect substitute goods are that kind of goods which fulfill our same ones clear ta mane jibilak drobboi amar purno bikolpo boli koisu ta mane jibilak drobboi amar eketa obhabe puron kore example loilua tumar hard book mane paper book okay so ei book di tumi study korisa ei book di tumi study nokoile tar alternative tumar e-book hatot lagibo clear ঠিক তেনেকা আই গ্লাसेस যদি তোমার না থাকে মই পিন্ধিছো সোৱা আৰু নহলে কন্টাক্ট লেন্সেসও লগাব পাৰা ক্লিয়ার হেতু পারফেক্ট সাবস্টিটিউটস হ'ব টি এন্ড কফি অলসো পারফেক্ট সাবস্টিটিউট ক্লিয়ার সো টি এন্ড কফি দেন আই গ্লাसेस and contact lenses physical books and e-books all are perfect substitute goods clear just like complementary goods boli kote perfect complements moi likhisu car petrol DVD and DVD players left shoes right shoes tea and sugar all are complementary goods means complementary goods refers to that kind of goods which fulfill our same wants keneka together tar mane jointly they fulfill our same ones clear jeneka sahor logot seni milale ami ki kobo paru sa khao paru hoyne nohoy so amar sa khwa obhabtu puron hoise thik teneka petrolor logot car jodi thake tetia hole ami gari ride koribo paru car ride koribo paru clear so thik teneka DVD thakile DVD players or logot ami ki koribo paru gan hunibo paru clear DVD hole nohobo DVD players u lagibo clear CD cassette আৰু CD machine to লাগিব হয় না নহয় ক্লিয়ার সো সেম ওয়ান্স ফুলফিল কৰিব কাৰণে জয়েন্টলি মোৰ দুটা বস্তু রাইট শু পিন্ধিলো যদি লেফট শু ওকে তেতিয়া হলে আমাৰ লাগিব হয় না সো তেনে যেতিয়া আমাৰ দুইটা বা তিনটা বা তাতকে বেছি দ্ৰব্য একেলগে লগ লাগি আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অভাৱ পূৰণ হয় তাক কোৱা হয় কমপ্লিমেন্টাৰী গুডস ক্লিয়ার মই এটো হিন্দীটো কৈ দিছো পারফেক্ট সাবস্টিটিউট গুডস উস टाइप का गुड्स को बोलता है मान लो कोई एक गुड्स तुमको चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है दूसरा एक ठो मिल रहा है लेकिन तुम्हारा वही वांट फुलफिल होगा जैसे मान लो चाय चाहिए चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफ़ी खा लो कॉफ़ी नहीं मिल रहा है तो चाय खा लो ठीक है तो फिजिकल बुक नहीं मिल रहा है तो ई बुक्स ले लो सन ग्लासेस अगर तुम्हारा आई ग्लासेस है जैसे स्पेक्ट वो नहीं है तो कॉन्टेक्ट लेंसेस ले लो तो तुम्हारा सेम वांस ही फुलफिल हो रहा है ये नहीं तो वो से फुलफिल हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं तुमको टी खाना है तुम अगर कोल्ड ड्रिंक्स खा लो तो नहीं होगा टी के जगह तुमको कॉफ़ी खाना है मीन्स कॉफ़ी पीना है क्लियर मतलब टी तुम चाय पी रहे हो तो चाय नहीं मिल रहे तो कॉफ़ी पियोगे है कि नहीं तो उस हिसाब से फिजिकल बुक्स नहीं मिल रहे तो ई बुक्स ले लो क्लियर और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया कार पेट्रोल दोनों मिला के एक तुम्हारा वांस फुलफिल हो रहा है मतलब कार राइड कर रहे हो DVD और DVD प्लेयर से तुम्हारा गाना सुन रहे हो लेफ्ट शू और राइट शू दोनों पहन के घूम रहे हो टी एंड शुगर दोनों मिला के तुम चाय पी रहे हो ठीक है ना तो उस टाइप के मान लो एक गुड्स के जगह दूसरा गुड्स से अगर सेम वांट तुम्हारा फुलफिल हो रहा है दैट गुड्स आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स ओके बट कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ गुड्स व्हिच फुलफिल आवर सेम वांट्स एज ए होल क्लियर मतलब जॉइंटली मिला के
मतलब जॉइंट डिमांड बोल सकते हो, जॉइंट डिमांड के हिसाब से तुम्हारा सेम वांट फुलफिल हो रहा है। क्लियर? मतलब एक साथ जोड़ के तुम एक पर्टिकुलर वांट्स फुलफिल कर रहे हो। क्लियर? पानी, शुगर, चाय पत्ती मिला के चाय पी रहे हो, है ना? तो उस हिसाब से अगर तुम्हारा पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तब तक तुम गाड़ी नहीं चला सकोगे, है ना? तो कार चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल अगर होगा कार नहीं है तभी भी नहीं होगा। क्लियर? तो उस हिसाब से तुम्हारा ये वांट फुलफिल हो रहा है। डीवीडी है लेकिन डीवीडी प्लेयर नहीं है तो नहीं चलेगा, है ना? तो डीवीडी भी चाहिए, प्लेयर भी चाहिए। तो ये जो है ना चीज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आईसी कप का शेप कैसे होता है। क्लियर? तो ये दो चीज़ पहले देख लो। नेक्स्ट टाइम हमको करना है व्हाई टू आईसी कैन नॉट काट्स ईच अदर। क्लियर? तो टू आईसी कैन नॉट काट ईच अदर कैसे होगा वो चीज़ भी देख लो। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में आईसी का शेप कैसे होता है। या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लियर? परफेक्ट व्हाट? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इधर हेडलाइन कर लिया, ठीक है, इधर एक तो बाउंड्री बना लिया, लाइन खींच दिया, इधर हो गया तुम्हारा परफेक्ट व्हाट? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर? सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये दो चीज़ हो गया। क्लियर? तो अभी अगर देखो यही दो चीज़ में तुम्हारा क्या हो रहा है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आईसी का अगर ड्रॉ करोगे ना तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑलवेज ध्यान रखो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आईसी का स्ट्रेट लाइन होता है, वो जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था। तार माने पूर्ण विकल्प द्रव्यर क्षेत्र निरपेक्ष रेखाडाल सदाय स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्सर क्षेत्र सदाय निरपेक्ष रेखाडाल राइट एंगल शेप है बा एल शेप बुलिও कब पारा। क्लियर? तेते हले इयात तुमार एटु लिखिलो, इयात एटु लिखिलो, इयात 0 to y एफाले x। क्लियर? इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्सर क्षेत्र तुम लई लोआ व्हाट, मैं इफाले लिखि दिसो फिजिकल। ओके, फिजिकल बुक्स और एफाले तुम्हार हो गल इ बुक्स। क्लियर? एटु हो गल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर? और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स तुम लई लोआ पेट्रोल एफाले तुम लई लोआ कार। ओके, मीन्स मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्सत दुटा द्रव्य लैसो, वाई एक्सिसत फिजिकल बुक्स और एक्स एक्सिसत इ बुक्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्सत मैं वाई एक्सिसत पेट्रोल लैसो और एक्स एक्सिसत कार लैसो। क्लियर? द क्वेश्चन हल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्सत फिजिकल बुक्स एंड इ बुक्सर क्षेत्र इफ वी ड्र आईसी तेतियाहले सदाय मनत राखिबा आईसी कैपिटल स्ट्रेट लाइन हब। कि हब? स्ट्रेट लाइन हब। क्लियर? सो आईसी कैपिटल कि हब? स्ट्रेट लाइन हब, हेतु मनत राखिबा आईसी कैपिटल स्ट्रेट लाइन हब। क्लियर? गोल। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज आईसी कैपिटल राइट एंगल शेप हब, मीन्स एल शेप हब। क्लियर? एल शेप हब। एल शेपर कारण तो होइसे कि मैं बुझाई दिम। ओके, दिस इज एल शेप हब। द क्वेश्चन होइसे स्ट्रेट लाइन आईसी हो गल एटू हो गल राइट एंगल शेप। द क्वेश्चन हल एटू स्ट्रेट लाइन होवार कारण तो होइसे सपोज धरा एटू एटा पॉइंट, ए पॉइंटत तुमार इ बुक्स आछे हातत दुटा और एटू आछे हातत तुमार 10टा। क्लियर? इन दैट सिचुएशन ए पॉइंट रिप्रेजेंट 10 and 2। If we move A to B, B point যদি মুভ কৰা then definitely তোমাৰ ই বুকস বাঢ়িব 2টাৰ পৰা 4টা আৰু এইটো তোমাৰ কমি যাব 10ৰ পৰা 8। ক্লিয়াৰ? আকৌ এইটো পইণ্টত যদি যোৱা এইটো বাঢ়ি পেলাই 6 হ'ব, এইটো তোমাৰ কমি পেলাই এফালে 6 হ'ব। ক্লিয়াৰ? বাট ইয়াত যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে এই পইণ্টটো এ বুলি লোৱা, এই পইণ্টত ই যদি আছিল 1 ইউ 1। ক্লিয়াৰ? এই পইণ্টত যদি যোৱা ই হৈ গ'ল 2, এই পইণ্টত যদি যোৱা ই হৈ গ'ল 3
আকৌ ইয়াৰ পৰা এ বি চি তিনিটা পইণ্ট ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা যদি তুমি ভাৰ্টিকেলি যোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো ডি পইণ্ট ল'লোঁ, এইটো ই পইণ্ট ল'লোঁ। ক্লিয়াৰ? এইফালে যদি যোৱা ই হৈ গ'ল 2, ই হৈ গ'ল 3। means in that situation petrol increases, in that situation car increases. clear? but ইয়াত কি হৈছে, ই ডিক্ৰিজ হৈছে, ই ইনক্ৰিজ হৈছে, ই ডিক্ৰিজ হৈছে, ই ইনক্ৰিজ হৈছে। ক্লিয়াৰ হ'ল? মই দুইটা কম্পেৰিজন কৰি বুজাই আছোঁ। ক্লিয়াৰ? ইয়াত তোমাৰ কি হ'ল, এ পইণ্টত 10:2 আছিলে, বি পইণ্টত when you move তেতিয়া তোমাৰ এইটো 2 কমি গ'ল, এইটো 2 বাঢ়ি গ'ল, এইটো 2 বাঢ়ি গ'ল, এইটো 2 কমি গ'ল। দ্যাট মিন্স ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ চেঞ্জটো কিমান, চেঞ্জটো 2, ইয়াৰ চেঞ্জটো কিমান হৈছে 2, ইয়াৰ চেঞ্জটো কিমান 2, ইয়াৰ চেঞ্জটো কিমান 2। দ্যাট মিন্স ইন দ্যাট সিটুৱেশ্যন ইফ উই সি হোৱাট delta y by delta x in each and every situation, change in y is 2, change in x is 2, value is 1. Again if we see, then change in y by change in x nothing but 2 by 2 means 1. Clear? Means in case of perfect substitute goods, okay, in case of perfect substitute goods IC curve always is a straight line curve. Okay, in that situation the slope of IC means MRS remains constant or fixed. Clear? Means MRS remains fixed or remains constant only on the ground of when goods are perfect substitute. okay, and IC curve is a straight line. Clear? গোল দিয়া আৰু সেইটো পারফেক্ট। কিয় জানানে, ফিজিক্যাল বুক যদি তুমি দুটা কমাইছা তে ই বুকস দুটা তোমার লাগিবই, फिजिकल যদি দুটা कमाइसा तुम्हार ई बुक्स दुटा লাগিবই। दैट मीन्स जो बोलना ये था, अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट हुआ ना तो उस टाइम पे तुमको अगर फिजिकल बुक्स 2 तुमने कमा दिया, घटा दिया, तो 2 तुमको ई बुक चाहिए। क्लियर? मतलब 2 कम गया तो 2 उधर चाहिए। क्लियर? मतलब ये सिचुएशन में अगर देखो, अगर टी तुमने टी पकड़ लो, टी तुमने 2 कप कम खाया तो 2 कप तुम कॉफ़ी खाओगे। अगर 3 कप कॉफ़ी कमा दिया तो 3 कप चाय बढ़ा दोगे। मतलब जो जितना चेंज होगा उसका अगेंस्ट में दूसरा वाला भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा। क्लियर? मतलब टी घटेगा 2 यूनिट तो कॉफ़ी भी 2 यूनिट बढ़ेगा, तो चेंज का मतलब सेम हो जाएगा। क्लियर? मतलब इधर जितना चेंज होगा उधर उतना ही चेंज होगा, इधर जितना चेंज होगा इधर उतना ही चेंज होगा। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। ये 2/2 हो गया, 3/3 लेने से 1 मिलेगा, 3/3 लेने से 1 ही मिलेगा। तो फाइनली ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द IC कर्व MRS रिमेन्स फिक्स्ड। क्लियर? ये हो गया परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स में। क्लियर? बट अगर तुम IC कर्व को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में देखो ना, ऑलवेज इट टेक्स ए राइट एंगल शेप। क्लियर? इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाओगे तो x का चेंज होगा, x का चेंज हो रहा है। देखो डेल्टा x मिल गया, डेल्टा x मिल गया, लेकिन इस पॉइंट में देखो y का चेंज नहीं हुआ। लेकिन तुम इधर से अगर इधर चले जाओ, ऐसे जाओगे तो y का चेंज तुमको मिल रहा है ना। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट में x का चेंज नहीं हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में y का चेंज हो रहा है, x का चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वर्टिकली अगर जाओगे तो y का चेंज हो रहा है, x एक्सिस के तरफ जाओगे तो x का चेंज मिले, मतलब कोई एक का ही चेंज मिल रहा है। क्लियर? क्यों हो रहा है इसका पता? कंसेप्ट ये हुआ, मतलब कार तुमको जितना मिलेगा लेकिन एटलीस्ट 1 यूनिट तुमको पेट्रोल चाहिए। क्लियर? क्योंकि विदाउट पेट्रोल यू कांट इमेजिन कार। क्लियर? ठीक उस हिसाब से अगर तुम्हारे पास पेट्रोल आ गया तो इसका मतलब मीनिंगलेस होगा। अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 कार नहीं है तो पेट्रोल जितना ही बढ़ेगा, कार तो तुमको 1 यूनिट चाहिए, मतलब एक कार तो चाहिए। अगर कार तुमने बढ़ा दिया तो पेट्रोल तुमको एटलीस्ट 1 यूनिट चाहिए। क्लियर? बिकॉज व्हाट, विदाउट पेट्रोल वी कांट इमेजिन कार, विदाउट कार वी इमेजिन पेट्रोल। क्लियर? इन दैट सिचुएशन एक कार के लिए पेट्रोल तो चाहिए और पेट्रोल के लिए भी कार चाहिए। क्लियर? कार के लिए पेट्रोल, पेट्रोल के लिए कार, एटलीस्ट 1 यूनिट चाहिए तुमको। क्लियर? इन दैट सिचुएशन MRS क्या होगा पता? MRS XY, MRS XY मीन्स डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर देखो किसी जगह पे ये 0 होगा, MRS XY
MRS XY मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसी जगह इन्फिनिटी तुमको मिल जाएगा। क्लियर? ओवरऑल तुम बोल सकते हो राइट एंगल शेप तभी होगा जब MRS इज 0। क्लियर? मतलब फाइनली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स में देखा जाए तो MRS डेफिनेटली टेक्स वैल्यू 0। क्लियर? बट स्ट्रेट लाइन में MRS रिमेन्स कांस्टेंट। ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में IC का भी स्ट्रेट लाइन होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स में IC का ऑलवेज टेक ए L शेप और राइट एंगल कर्व। क्लियर हो गया? सो ये दो सिचुएशन में IC का स्पेशली ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, हम लोग का जो नॉर्मल गुड्स का IC होता है वो ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर? जो हम लोग का एक्चुअल IC है मतलब इंडिफरेंस का। क्लियर? ये तो हो गया दो कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था टू IC कैन नॉट काट्स और टचेज ईच अदर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जो प्रॉपर्टी में था, व्हाट टू IC कैन नॉट काट्स ईच अदर, बट क्वेश्चन इज व्हाई टू IC कैन नॉट काट्स ईच अदर। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा why टू इंडिफरेंट, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया कफ टू IC कैन नॉट कट्स व्हाट कट्स ईच अदर। क्लियर? कभी भी टू IC कैन नॉट काट इच अदर तार माने हुई दुडाल IC केतियाओ एटाई आनटुक कटाकटी नकरे। क्लियर? दैट मीन्स दुडाल IC केतियाओ दुडाल IC केतियाओ कटाकटी नकरे। क्लियर? क्यों कटाकटी नकरे সেই বস্তুটো বুঝাই আছো। क्लियर? ओके, मैंने देखो दो IC बना दिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाई टू IC कैन नॉट काट ईच अदर, कैन नॉट काट्स व्हाट ईच अदर। क्लियर? तो अगर दो IC कट करेगा मतलब देखो एक चीज़ IC1 अगर देखो 2 नहीं है पकड़ लो, अगर IC1 है तो उसमें 2 पॉइंट तुमको मिल रहा है, ए पॉइंट मिल रहा है एंड बी पॉइंट मिल रहा है IC1 में, मतलब ये 2 पॉइंट IC1 में है। लेकिन ए एंड सी पॉइंट अगर IC2 में देखो तो उसमें भी 2 पॉइंट है, ए एंड सी पॉइंट। ओके, तो हम लोग को पता है हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर IC रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, मतलब एक IC में हर पॉइंट में सेटिस्फैक्शन सेम है, लेकिन हायर IC में हायर होगा, लोअर IC में लोअर होगा। तो उस हिसाब से देखो तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट लाइज ऑन IC1, ए एंड सी पॉइंट लाइज ऑन IC2। क्लियर? तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अगर देखो ए एंड बी पॉइंट अगर IC1 में है तो ए इज इक्वल बी हो रहा है ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये दो IC1 में हो रहा है। लेकिन ए एंड सी पॉइंट अगर देखो तो वो हो रहा है IC2 में। तो मुझे एक चीज़ बोलो, A इज इक्वल अगर B सेटिस्फेक्शन के माफिक हिसाब से A इज इक्वल अगर C, तो फाइनली तुमको मिल रहा है, फाइनली मतलब फाइनली तुमको मिल रहा है क्या, B इज इक्वल C। लेकिन हम लोग को पता है B पॉइंट IC1 में है और C पॉइंट IC2 में है, तो A एंड B पॉइंट में ये तो समझ में आया सेटिस्फेक्शन सेम होगा, बिकॉज A एंड B बोथ पॉइंट लाइज ऑन सेम IC1। लेकिन A एंड C भी हो सकता है इक्वल, बिकॉज A एंड C ऑल्सो लाइज ऑन सेम IC2। क्लियर? तो वो तो पता है। लेकिन अगर A इज इक्वल B, A इज इक्वल C हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है B इज इक्वल C, मतलब B इक्वल C, मतलब इसको 10 मान लो, इसको 10 मान लो, तो 10 इक्वल हो गया। तो ये तो 10 था, ये 10 लिख लो, ये अगर इज इक्वल है तो ये भी 10 ही होगा ना। तो फाइनली B हो गया 10, C भी हो गया 10। सो फाइनली तुमको मिल रहा है B इज इक्वल C। इसका मतलब ये हो गया B एंड C बोथ पॉइंट गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट साथ साथ ये चीज भी हम लोग को पता है B पॉइंट लाइज ऑन लोअर IC, C पॉइंट लाइज ऑन हायर IC। लेकिन दो IC में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये इंटरसेक्ट के हिसाब से देखो तो B इज इक्वल C दिखा रहा है।
है कि नहीं, वो कभी नहीं हो सकता है। क्लियर? सो आईसी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो टू आईसी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया, इस पॉइंट में सेटिस्फेक्शन जितना, इस पॉइंट में भी सेटिस्फेक्शन उतना। सो इस हिसाब से देखो तो ए इज इक्वल बी, इस पॉइंट में सेटिस्फेक्शन जितना, इस पॉइंट में भी सेटिस्फेक्शन उतना। उस हिसाब से देखो तो सी इज इक्वल डी, लेकिन ए इज इक्वल बी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज लोअर देन सी इज इक्वल डी, बिकॉज ए बी लाइज ऑन IC1, सी एंड डी लाइज ऑन IC2। क्लियर? लेकिन इधर क्या हो रहा है, ए इज इक्वल बी, ए इज इक्वल सी, फिर बी इक्वल सी, मतलब बी पॉइंट लाइज ऑन लोअर आईसी, सी पॉइंट लाइज ऑन हायर आईसी। इसका मतलब बी पॉइंट एंड सी पॉइंट में सेम सेटिस्फेक्शन हो गया, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है। क्लियर? क्लियर? एक तो पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये भी बोला था, अगर मान लो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट में तुमको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है ना, तो बी पॉइंट में तुमको मान लो x तुम ले रहे हो 6, ये ले रहे हो 3 यूनिट, मतलब 3y मिल रहा है, 6 यूनिट x मिल रहा है। लेकिन इस पॉइंट में अगर देखो x तुमको 6 मिल रहा है, लेकिन ये तुमको मान लो 4 मिल रहा है। मतलब b पॉइंट में तुमको कॉम्बिनेशन मिल रहा है 3 एंड 6, c पॉइंट में कॉम्बिनेशन मिल रहा है 4 एंड 6। तो मुझे ये चीज़ बताओ, b पॉइंट में जो कॉम्बिनेशन है 3 एंड 6 उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, या c पॉइंट में जो कॉम्बिनेशन है 4 एंड 6 उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा होगा? नेचुरली सी पॉइंट में पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि सी पॉइंट में y ज़्यादा है कि नहीं, 1 यूनिट ज़्यादा है, तो पैसा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लगेगा ना। लेकिन तुम्हारा सी पॉइंट में कॉम्बिनेशन में 4 एंड 6 कॉम्बिनेशन में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बी पॉइंट में 3 एंड 6 कॉम्बिनेशन में तुमको पैसा कम लग रहा है। तो मुझे एक चीज़ बोलो, सेम सेटिस्फेक्शन तुमको दोनों पॉइंट में अगर मिल रहा है, तो तुम क्यों सी वाला पॉइंट चूज करोगे? मुझे ये बताओ। अगर सी चूज करोगे तो सी में को तो तुमको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिल रहा है जितना बी में मिल रहा है, लेकिन सी पॉइंट में तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है बिकॉज वाई ज़्यादा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो वही मिल रहा है जो बी में मिला था। लेकिन बी में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है क्योंकि 3 एंड 6 है। इसका मतलब ये हो गया, मैं ये ओमिट कर देता हूँ, ठीक है, ये ओमिट कर देता हूँ। ओमिट करने के बाद इसका मतलब ये हो गया, अगर तुम बी पॉइंट चूज करो तो तुमको बी पॉइंट में x मिल रहा है 6x प्लस बी पॉइंट में, और ये मिल रहा है 3y। लेकिन सी पॉइंट में अगर देखो तो x मिल रहा है 6x, लेकिन y मिल रहा है 4y। अभी मुझे एक चीज़ बोलो, बी पॉइंट में ये 6 लग रहा है, ये 3, मतलब कॉम्बिनेशन में, लेकिन सी पॉइंट में तुमको x 6 मिल रहा है, लेकिन y थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है ना, 4 यूनिट। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट में मान लो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो रहा है ₹30, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन में तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो रहा है ₹40। क्यों 40 हो रहा है? क्योंकि उधर 1 यूनिट y बढ़ गया। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन खरीदोगे, मान लो एज्यूम कर लो तुम्हारा ₹30 खर्चा हो रहा है, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन अगर लोगे सी पॉइंट का तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 40। तो मुझे यही सवाल का आंसर चाहिए, तुम ₹30 खर्चा करोगे या ₹40? 40 तुम खर्चा करना था अगर तुमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता, लेकिन तुमको पता है 30 खर्चा करने से जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसमें तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जितना मिलेगा, 40 खर्चा करने में भी तुमको कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत y ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा। तो तुम क्यों ज़्यादा खर्चा करके सी वाला कॉम्बिनेशन खरीदोगे? मुझे ये चीज़ बोलो। एज ए रैशनल कंज्यूमर यू ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज योर बजट और एक्सपेंडिचर। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन तुम ये वाला कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट करोगे।
ये वाला कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट करोगे, ये वाला कॉम्बिनेशन को तुम क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। इसका मतलब ये हो गया सी वाला कॉम्बिनेशन अगर लोगे तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर 40 हो रहा है, बी वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन में खर्चा हो रहा है 30, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो वही मिल रहा है, कितना, सेम, बिकॉज बी इज इक्वल सी, जो कॉन्सेप्ट मिला था। तो डेफिनेटली कंज्यूमर क्या करेगा, सी पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट में चला आएगा। मीन्स कंज्यूमर डेफिनेटली मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू बी ऑन लोअर आईसी, क्लियर, बिकॉज सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है। लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस का अगर देखो, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर आईसी रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर ऑलवेज लोअर आईसी टू हायर आईसी मूव करता है जनरली, लेकिन इधर क्या हुआ, कंज्यूमर मूव कर रहा है हायर टू लोअर जा रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कंज्यूमर ऑलवेज मूव लोअर टू हायर, लेकिन हायर टू लोअर कभी नहीं जाता है, ऑलवेज कंज्यूमर ट्राई टू मूव लोअर टू हायर। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कंज्यूमर हायर से लोअर जा रहा है कि नहीं, वो कभी नहीं होता है, लेकिन इधर तो जा रहा है। इसलिए शायद इधर कंसेप्ट इसलिए ऐसा हो गया बिकॉज बी इक्वल सी हो गया, लेकिन ये वाला चीज़ रियलिटी में नहीं होता है, क्लियर। और ये हुआ क्यों, ये जो इंटरसेक्ट किया इसलिए हुआ, इसलिए तो 2IC cannot intersect each other because why, always we know higher IC represent higher level of satisfaction, lower IC represent lower level of satisfaction, clear। if 2IC cuts each other हो जाएगा ना, तो 2IC finally represent same level of satisfaction, वो कभी नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये चीज़ हम लोग को समझाना था, समझ लिया, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया why 2IC cannot intersect each other, okay, this is one। another two is what is the shape of IC in perfect substitute goods, what is the shape of IC in case of perfect complement goods, okay। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को दूसरा टॉपिक लेके कंज्यूमर बिहेवियर में आगे जाना है, बिकॉज हम लोग का मोटिव था हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व्स, मीन्स ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ओके, थैंक यू।